Students, today we'll discuss the topic that is electrochemical cell and Gibbs free energy of the reaction. So students, just see out the maximum work done in an electrochemical cell, that is W max, that is equal to NFE naught cell, where N is number of electrons in the cell reaction, F stands for Faraday constant, whose value is 96500 coulombs, and E naught cell, it is the maximum potential, or you can say standard cell potential. This is equal to E naught oxidation plus E naught reduction. So this I can say beta formula number 1. Now all of you know delta G naught. Delta G naught is standard Gibbs free energy of reaction. This is equal to minus of maximum work done, और यू कैन से नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, कि जितना भी आपका वर्क डन होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो कहाँ से आएगा? गिब्स फ्री एनर्जी से, और द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन. सो फ्रॉम दिस 1 और 2 व्हाट विल गेट? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डेल्टा जी नॉट, ये बेटा किसके इक्वल है? माइनस डब्ल्यू मैक्स, और डब्ल्यू मैक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? NFE naught cell. So delta G naught is equal to minus NFE naught cell. This is our expression, or you can say the relation between the E naught cell and the delta G naught. Clear to all of you? Now units of delta G naught. It is coulomb volt, or you can say joule or joule per mole. These are the units, be remember. Now the significance of delta G naught is that we can predict the feasibility of, हम किसी भी सेल रिएक्शन की या सेल की फिजिबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन. फॉर दिस रिमेंबर, इफ delta G naught is negative, then the reaction is feasible. If delta G naught is positive, then the reaction is not feasible. And if delta G naught is 0, then the reaction is in equilibrium. So feasibility के लिए just remember one thing, where delta G naught must be negative. Now we are having one more special case that we have to discuss here. I'll remove this significance. The special case is that if delta G naught is equal to minus NFE naught cell, beta, then we can say delta G is equal to minus NFE cell. Remember this point, where delta G is Gibbs फ्री एनर्जी चेंज. यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. और ई सेल को व्हाट वी विल से, ऑल ऑफ यू नो, सेल पोटेंशियल, और वी कैन से मिनिमम सेल पोटेंशियल. सो बेटा दो चीजों को ध्यान रखना है. डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज माइनस NF E नॉट सेल, तो ये जो E नॉट सेल आएगा आपका, इट इज द मैक्सिमम और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. एंड इफ यू विल यूज डेल्टा G is equal to minus NFE cell, then delta G is gives free energy and E cell is the normal cell potential, or you can say minimum cell potential. और E naught cell का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है. This we can calculate by the Nernst equation. E cell is equal to E naught cell minus 0.0
0.0591 upon n log concentration of products upon concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficient. सो बेसिकली बेटा आपको इसमें डील करना है फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4 और ये आपका फॉर्मूला नंबर 5. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये थ्योरेटिकल पार्ट था. नाउ विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट. दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन. नाउ द numerical part, that is numeric and conceptuals. So the first question is question number 1. Calculate delta G naught and maximum work done. The cell is Zn2 positive, Cu2 positive to Cu, E0 Zn2 positive to Zn is minus 0.76 volt, whereas E0 Cu2 positive to Cu is 0.34 volt. चलिए कैलकुलेट करते हैं. Solution, C out. We know that delta G naught is equal to minus NF E naught cell. So बेटा ध्यान से देखिए, zinc is converted into Zn2 positive, there is a involvement of 2 electron. Copper 2 positive से copper there is a involvement of 2 electron. So बेटा N की वैल्यू आ गई 2. Faraday constant is 96500 coulombs. Now E naught cell, just see out. जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव. यहां देखिए, चलो यही निकाल लेते हैं. ई नॉट सेल, ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu. नाउ पुट द वैल्यूज. बेटा Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस 0.76 है और हमें क्या चाहिए, वी नीड Zn से Zn2 पॉजिटिव, सो दिस विल बी प्लस 0.76 volt and copper same है as it is है, so I will write 0.34 volt. On addition I will get 1.10 volt. So यहाँ पर मैं पुट करूँगा 1.10 volt. So ये पुट किया मैंने. The answer after solving this comes out to be minus 212300 joule or coulomb volt. This is your delta G naught. Now maximum work done, all of you know, this is equal to NF E naught cell. और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, maximum work done जो है that is negative of delta G naught, that is minus 212300 comes out to be 212300 coulomb volt, joules. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैक्सिमम और नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वर्क डन. सो वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट. और डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं आपको पता है, इट इज माइनस NF E नॉट सेल. सो नेवर गेट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन. कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेल्टा जी भी पूछ लिया, मैक्सिमम वर्क डन भी पूछ लिया. द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द नेगेटिव साइन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is calculate delta G naught of the reaction. Mg plus Cu2 positive giving you Mg2 positive plus Cu. E naught cell is given to us 2.71 volt. Now delta G naught solution.
माइनस NF E0 सेल। सो बेटा देखिए Cu से Cu2 पॉजिटिव से Cu देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और बेटा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो द वैल्यू ऑफ N इज 2 into F is 96500 into E0 cell is 2.71. After multiplication I will get minus 523030 coulomb volt. So simple numericals are there, these are not the typical one, the numericals simply आपको करना है. चलिए now question number 3. Question number 3, he says that zinc silver oxide cell that is used in hearing aid has the cell reaction. The cell reaction is Zn says Zn2 positive plus 2 electron 0.76 volt, then Ag2O plus water plus 2 electron giving you twice Ag plus twice OH negative, and E0 is 0.344 volt. This is minus 0.76 is E0, plus 0.76. Oh, so this data is given to us. चेक कर लीजिए, Zn से Zn2 पॉजिटिव का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, इसका है. These two equations are given to us. Now what they ask, which is oxidized? First is which is oxidized and reduced, and second they want to ask calculate delta G naught. So बेटा ऑक्सीडाइज तो यहीं से नजर आ रहा है, देखिए जस्ट सी आउट, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर सिल्वर अंडरगो Ag पॉजिटिव अंडरगो रिडक्शन. सो ऑक्सीडाइज्ड में वी विल नोट डाउन द नेम जिंक, और रिड्यूस्ड में बेटा वी विल नोट डाउन द नेम ऑफ सिल्वर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया. दैट इज नाउ E0 सेल. E0 सेल से डेल्टा G0 निकालेंगे. डेल्टा G0 इज माइनस NF E0 सेल. सो बेटा वन बाय वन चीजें फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट E0 सेल. सी आउट बेटा जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, सो आई विल राइट E0 Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव. यहाँ पे Ag पे +1 चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सो Ag पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Ag E0. वैल्यू पुट करते हैं. Zn से Zn2 पॉजिटिव गिवन है 0.76, और बेटा दैट इज Ag पॉजिटिव से Ag गिवन है 0.344. ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.10 वोल्ट, और प्रॉपरली अगर करो तो ये आएगा आपका 1.104 वोल्ट. सो बेटा यहाँ पर अब चेक करें, E0 सेल आ गया. N और चेक करिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2, तो बेटा N हो गया 2. फेराडे कांस्टेंट इज 96500 कूलम, और E0 सेल 1.104. सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. आई विल गेट द आंसर 213072 कूलम वोल्ट. So numericals are simple, not so the typical one. ठीक है, चलिए now the next one. This all अब तक हमने किया regarding the delta G naught. अब next question में हम delta G find out करेंगे. That is the question number 4 now. Question number 4. Calculate delta G of the cell. चलिए now. The cell given to us is, पहले नोट करते हैं, Zn2 पॉजिटिव इज 0.123304 मोलर. सॉल्ट ब्रिज कैडमियम 2 पॉजिटिव इज 0.2 मोलर, देन कैडमियम.
solid, zinc is solid. E naught, Zn2 पॉजिटिव से Zn बेटा माइनस 0.76 वोल्ट एंड E naught CD पॉजिटिव टू CD इज माइनस 0.403 वोल्ट्स. चलिए ना, so see out delta G. The formula is delta G is minus NFE cell. So बेटा N तो आ जाएगा Zn से Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, CD पॉजिटिव से CD 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, N2 फेराडे कांस्टेंट वी नो 96500 कूलम्स. अब E सेल कैसे निकालें? तो पहले हम E सेल निकालेंगे. फॉर्मूला इज E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of products upon concentration of reactants raised to the power equal to stoichiometric coefficient. So बेटा पहले E naught cell निकालते हैं. कैसे आएगा? जस्ट सी आउट. E naught cell is equal to, बेटा zinc is converted into Zn2 positive, so I will write E naught Zn से Zn2 positive plus cadmium 2 positive is converted into cadmium CD2 positive to CD. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. हमें गिवन है E naught Zn2 positive to Zn minus 0.76 and we need E naught Zn से Zn2 positive, so just reverse of this value I will get 0.76. Now the E naught CD2 positive to CD is minus 0.403. So simply 0.76 minus 0.403 on subtraction I will get 0.36 volt. चलिए अब, so just putting the values, what will I get? E cell is equal to E naught cell is 0.36 माइनस बेटा 0.0591 अपॉन 2 लॉग. नाउ बेटा ऑल ऑफ यू नो, मैंने बताया था आपको कि ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, बिकॉज जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट बिकॉज कैडमियम 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कैडमियम. तो आपके प्रोडक्ट्स में कौन कौन है? Zn2 पॉजिटिव सिंगल स्पीसीज है रेज टू द पावर 1, और वहाँ कैडमियम सॉलिड रेज टू द पावर 1. नाउ रिएक्टेंट्स में बेटा जिंक सॉलिड रेज टू द पावर 1, और वहाँ कैडमियम 2 पॉजिटिव रेज टू द पावर 1. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 0.36 माइनस, ये फिगर हम पहले भी कर चुके हैं नस्ट इक्वेशन में, 0.0295 लॉग. नाउ Zn2 पॉजिटिव कितना है बेटा? इट इज 0.12304 रेज टू द पावर 1. कैडमियम और जिंक आपके सॉलिड है, तो इनकी जो एक्टिव कंसंट्रेशन होगी, एक्टिव मास हम 1 लेके चलते हैं, सो उसको लीव कर देते हैं. कैडमियम 2 पॉजिटिव इज 0.2 रेज टू द पावर 1. अब इस क्वांटिटी को बेटा अलग से सॉल्व करते हैं. लॉग 0.12304 अपॉन 0.2. बेटा इस डेसिमल को रिमूव किया है, आई विल गेट 10. इसको रिमूव किया, आई गेट 1 2 3 4 zeros. So 1 0 से 1 0 cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So this will be log 2 into, sorry, और डायरेक्टली log 2 into 10 raised to the power minus 3. ये जो 1000 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3. So this will be written as log 2 plus log 10 raised to the power minus 3. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 and log 10 पर -3 is -3. So 0.3010 -3, जब आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट -2.6990, -2.6990. दिस इज द सिंपलेस्ट लॉग कैलकुलेशन, नॉट टिपिकल. सो यहाँ पर पुट कीजिए बेटा 0.36 माइनस 0.0295 लॉग इसकी दिस वन क्वांटिटी -2.6990. Clear to all of you? Now what will I do? Simple, 0.36 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा 0.0295 मल्टीप्लाई 2.6990
Clear? So on multiplication, what will I get? 0.08 volt. This quantity 0.08 volt. This is 0.36. On simple addition, I'll get the answer 0.44 volt. This is E cell. So बेटा यहाँ पर इस फॉर्मूले में N भी हमें पता है, F भी पता है, E सेल हमारा निकला 0.44 वोल्ट. सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ न्यूमेरिकल का, आप सिर्फ वैल्यू पुट करनी बाकी है. सो आई पुट द वैल्यू सो दैट आई गेट द आंसर. दिस विल बी डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल. N इज 2, F 96500 कूलम और E सेल हमने अभी कैलकुलेट किया 0.44 वोल्ट. सो दिस विल बी माइनस 84920 कूलम वोल्ट और यू कैन राइट जूल. सो इन दिस न्यूमेरिकल बेटा हमने क्या कैलकुलेट किया? डेल्टा G. और प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हमने क्या कैलकुलेट किया था? डेल्टा G नॉट. सो बी रिमेंबर दिस थिंग नाउ. नाउ आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is calculate minimum potential difference needed for the reaction. Minimum potential difference, I'll tell you, you have to calculate E cell. क्या कैलकुलेट करना है आपको? E cell. Reaction is 2/3 Al2O3 giving you 4/3 Al plus O2 and delta G for the reaction is 960 kilojoule. Convert into joule. So this will be 960 into 10⁻3. So 961234 joules. चलिए लेट्स सी कैलकुलेट करते हैं. सो ई सेल के लिए डेल्टा जी गिवन है. फॉर्मूला बनेगा बेटा आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. सो डेल्टा जी गिवन है, एफ हमें पता है, ठीक है. ई सेल हमें कैलकुलेट करना है. सो एन कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये थोड़ा टिपिकल आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, जस्ट चेक आउट. वी विल राइट दिस वन लाइक दैट कि भाई Al2O3 से मुझे क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम प्लस O2. और अगर मैं बैलेंस करूंगा तो 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, और ऑक्सीजन को व्हाट विल आई राइट? 1.5 ऑक्सीजन. चलिए अब चेक करते हैं बेटा. यहाँ पे एल्यूमिनियम की स्टेट +3 है, यहाँ पे 0 है. सो +3 से 0, वैसे तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, बट 2 एल्यूमिनियम है तो डिफरेंस कितने का आया? 6 इलेक्ट्रॉन का. सो ध्यान रखिए 1 Al2O3, तो आपकी जो N की वैल्यू आई वो 6. यहाँ पे कितने Al2O3 हैं? 2/3 Al2O3. N is 6 into 2/3. तो 3 2s are 6, 2 into 2, जो N की वैल्यू आई दैट कम्स आउट टू बी 4. सो यहाँ पर सिर्फ N की वैल्यू के लिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ा. क्लियर? सो नाउ जस्ट सिंपली विल पुट द वैल्यूज. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आई विल गेट द आंसर. डेल्टा G is 961234. N is 4, Faraday constant, 96500 into E cell. Now E cell is equal to beta 961234 divided by 4 into 9600. एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे नेगेटिव भी यहाँ पे शिफ्ट होगा और E cell जो सॉल्व करके आएगा 2.487 volt. Clear to all of you now? So this is the, you can say, minimum potential difference for doing this reaction. So ध्यान रखिए मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस में आपको निकालना होता है E cell. Clear? चलिए now the last question, question number 6, based on this. Question number 6 is the reduction potential for 2 half cells.
reduction potential for two half cells are Cu2 positive plus electron giving you Cu positive, E naught 0.15 volt, Cu positive plus electron giving you Cu, E naught is 0.50 volt. I have to calculate रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन. मुझे किसका निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल? दैट इज गिवन टू मी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा कॉपर. इसके लिए बेटा मेरे को ई नॉट कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो जस्ट सी कैसे कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. अब कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट. सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि बेटा ये जो आपकी, अगर आप दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हो, सो ऐड करने पर आपका जो नेट रिजल्ट आएगा उस रिएक्शन का आ जाएगा. चेक भी कर सकते हैं. Cu पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव कट जाएगा, यू विल गेट Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu. ठीक है, सो इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 लेके चलूंगा और इसको मैं लेके चलूंगा इक्वेशन नंबर 2. अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे अपनी टारगेट इक्वेशन मिलेगी. अब इस इक्वेशन के लिए मैं डेल्टा G01 मान लेता हूं. इसके लिए आई सपोज डेल्टा G02. क्लियर. तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G0 आएगा दैट इज डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02. क्लियर. और एक बार अगर मेरा डेल्टा G0 आ गया, दिस इज अ नेट डेल्टा G0. सो दिस नेट डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0. और यहां से फिर मैं डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, E0. तो थोड़ा प्लॉट समझिए कैसे करना है. बाई दीज टू रिएक्शन मैं इस रिएक्शन का डेल्टा G0 निकालूंगा, देन आई विल डू दिस. तो पहले मुझे डेल्टा G0 फर्स्ट कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, देन डेल्टा G0 इसके लिए, उसको ऐड करूंगा तो मुझे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 मिलेगा. सो डेल्टा G0 फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस NF E0. तो माइनस n, बेटा यहां पे n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 96500 मल्टीप्लाई E0 कितना है 0.15. क्लियर. ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी माइनस 14475 वोल्ट. नाउ डेल्टा G02 अगेन माइनस NF E0 सेल, और E0 बोल सकते हैं क्योंकि हाफ सेल है तो हाफ सेल में कहेंगे. यहां पर भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, सो माइनस 1 इंटू 96500 और यहाँ पे जो E0 है 0.50. ऑन डूइंग द मल्टीप्लीकेशन आई विल गेट दिस इज माइनस 48250. सो डेल्टा G0 नेट फॉर दिस रिएक्शन जो हमारी टारगेट इक्वेशन है, डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02. क्लियर. सो दैट इज माइनस 14475 प्लस माइनस 48250 माइनस 14475 माइनस 48250. दिस कम्स आउट टू बी माइनस 62725 जूल्स. सो ये क्या है बेटा हमारा डेल्टा G0 नेट. अब E0 से निकाल सकते हैं कैसे? डेल्टा G0 नेट इज इक्वल टू माइनस NF E0. क्लियर. तो डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी है बेटा, पुट कीजिए माइनस 62725. द वैल्यू इज माइनस 62725. अब इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2. सो यहां n की वैल्यू लेंगे 2, 96500 मल्टीप्लाई E0. सो फ्रॉम हेयर द E0 इज नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 62725 अपॉन 2 इंटू 96500 कूलम. On solving this comes out to be 0.325 volt. So this is a third question. Sorry, last sixth question. तो basically बेटा इसमें क्या था, just see out. कोई टिपिकल नहीं था. हमें दो रिएक्शन की हेल्प से थर्ड रिएक्शन को डिराइव किया हमने. फिर जो इन दोनों रिएक्शन का डेल्टा G था उससे थर्ड का डेल्टा G0 फाइंड आउट किया और डेल्टा G0 से हमने क्या फाइंड आउट किया, E0 सेल. So this we have done the very important article
relation between delta G naught and E naught cell or delta G and E cell. This is basically a, you can say, numerical article. So this is all about the topic. That's all.